Good morning, class. In the previous class, we have studied about what is democracy and we learned the very first definition of democracy. Here it is written, democracy is a form of government in which the rulers are elected by people. But I also told you that this definition of democracy is not adequate because the definition of democracy involves lot more things than only this thing that the ruler are elected by people. So there is need to learn more about what actually a democracy is. Also, yesterday I told you two stories of Pakistan and one of China which does not involve democracy in electing their ruler, means they are following dictatorship and monarchies. So we will continue our topic further. So what we learned from this example, we learned that a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. मतलब कि इलेक्शन जब दो पार्टी के बीच में होती है तो दोनों पार्टी के पास जीतने का एज वेल एज लूज़ करने का, मतलब हारने का, दोनों के पास चांस होना चाहिए. अगर कोई एक जो बहुत पावरफुल है और वो बहुत गंदे ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स यूज़ करके अगर इलेक्शन जीत रहा है तो वी कैन नॉट कॉल इट इज़ डेमोक्रेसी बिकॉज election are happening in those countries but it involve fraud, so we cannot call it as democracy. Okay, now there is one more important topic which democracy involves. Democracy says that in a country every person have one vote and every vote have a value. Okay, so here there are few points given. We will continue with the first. It is written that until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote. Saudi Arabia में 2015 तक वोट करने का अधिकार नहीं था वुमेन्स के पास. Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. So look, in Saudi Arabia, Estonia and in the below given Fiji, here people don't have right to vote. Not all, few people of that country have don't right to vote. So this country does not follow the democracy. But democracy says that every person of the country have the right to vote and each vote must have one value. Each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. Okay, so this is also very important for democracy. Now we will learn one more feature of democracy, but to learn that we'll continue with example of Zimbabwe. So Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. मतलब जिम्बाब्वे 1980 में उसने आज़ादी पा लिया था वाइट माइनॉरिटी से. पहले वहाँ पर केवल वाइट माइनॉरिटी के लोग जो होते थे उन्हीं का गवर्नमेंट होता था. तो जिम्बाब्वे ने अटेंड कर लिया था इन 1980 इंडिपेंडेंस. सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानुपे. उसके पहले तक 1980 के पहले तक कंट्री पे रूल जानुपी का होता था. ये एक ऐसी पार्टी है, एक फ्रीडम स्ट्रगल पार्टी है जिसके लीडर रॉबर्ट मुगाबे थे, जिसने कंट्री को रूल किया इंडिपेंडेंस तक. इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय जानुपे. इलेक्शंस होते थे कंट्री में पर हमेशा जीतता कौन था? एक ही पार्टी जीतती थी, जानुपे. और प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन. प्रेसिडेंट मुगाबे भी बहुत पॉपुलर था पर इलेक्शन को जीतने के लिए वो गंदे प्रैक्टिसेस यूज़ करता था, लोगों को खरीद लेता था पैसों में. ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम to increase the power of the president and make him less accountable. Opposition party workers were harassed and their meeting disrupted.
ओपोजिशन पार्टी के वर्कर को ये लोग बहुत परेशान करते थे। उनकी मीटिंग जब भी होती थी तो उसमें कुछ ना कुछ ये लोग ऐसा कर देते थे कि उनकी मीटिंग ना हो। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। पब्लिक प्रोटेस्ट और जो डेमोन्स्ट्रेशन होते थे सरकार को लेकर के, वो ये लोग इलीगल डिक्लेयर करवा देते थे। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। एक कानून था जिसने लिमिट करा था कि प्रेसिडेंट के जो अधिकार हैं वो लिमिटेड होंगे, तो उसको भी ये लोग क्रिटिसाइज करते थे। वो सोचते थे कि हम ही केवल पावर में रहें और सबसे ज़्यादा पावर हमारे पास हो। टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। टेलीविज़न और रेडियो भी कंट्रोल कर लेते थे ये लोग। वो जो चाहते थे वही न्यूज़ एंकर्स बोलते थे। सभी को ये लोग बहुत परेशान करते थे। There were independent newspaper, but the government harassed those journalists who went against it. The government ignored some court judgment that went against it and pressurized judges. He was forced to out of office in 2017. So journalist जो न्यूज़ पे हमारे न्यूज़ दिखाते हैं, वो सब लोग को ये लोग हैरेस करते थे बहुत ज़्यादा। The example of Zimbabwe shows that popular approval of the ruler is necessary in a democracy, but it is not sufficient. तो एग्जाम्पल ये जो जिम्बाब्वे का अभी हमने आपको पढ़ाया, वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि रूलर का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी में, पर वो सफिशिएंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं। पॉपुलर लीडर ऑटोक्रेटिक कहे जा सकते हैं। इफ़ यू विश टू एक्सेस अ डेमोक्रेसी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन। तो अगर हम डेमोक्रेसी को अच्छे से रीड करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, कैसा डेमोक्रेसी हो रही है फॉलो कि नहीं, तो ये इससे अच्छा होगा कि कौन जीत रहा है, इससे मतलब नहीं रखना है। हमें मतलब इससे है कि वो इलेक्शन कैसे करा रहे हैं, फेयर तरीके से या फिर अनफेयर तरीके से। सो दिस इज ऑल अबाउट जिम्बाब्वे एंड सो इसका कंक्लूजन ये निकला कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। अब और हमने 4 फीचर डेमोक्रेसी के पढ़े अभी तक थ्रू वेरियस एग्जाम्पल, चाइना, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे। सो उन सब से क्या सीखने को मिलता है? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, वी ऑल नो अबाउट दिस, बट देर इज फर्दर 4 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी विच आर एडेड इन दिस डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी विच मेक इट complete. So we will learn about that. Democracy is a form of government in which rulers elected by the people take all the major decision. मतलब जो रूलर पीपल इलेक्ट करते हैं वो सारे मेजर डिसीजन कंट्री के वो लें। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर। और जो इलेक्शन क्या होना चाहिए? वो फेयर होना चाहिए। फेयर अपॉर्चुनिटी दे सभी को कि आप अपने रूलर को अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप उन्हें ही कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और ये अपॉर्चुनिटी वोटिंग सिस्टम की, वोट देने की, सबके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वुमेन को किसी कंट्री में वोट देने का अधिकार ही नहीं है, जो वाइट पीपल हैं उन्हें ही किसी कंट्री में केवल वोट देने का अधिकार है। तो ऐसा जिस कंट्री में होगा वो डेमोक्रेटिकली कंट्री नहीं कही जाएंगी, वहाँ पर डिक्टेटरशिप एंड मोनार्ची आ जाएगा। The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of constitutional and citizen right. So this is the 4 basic feature of democracy. So children, please learn it by heart. And also I made a note for you all. Take the screenshot of this or write it properly. I will share it with you all again. Okay, thank you.